Hello, my dear students. Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself, Tosif sir. As you know, students, in our previous lecture, we have started unit number 11, which is about India water resources. But due to the consideration of periodic exam, your periodic exam, which is near in September month, and in that exam, the unit number 10, India agriculture, is in the syllabus. So I think that I need to take first, or I need to complete this unit priorly before the periodic exam. So today we are going to start India agriculture unit number 10. After that we will cover up, or we will complete the unit number 11. Okay, so please consider it and try to understand. Let us start about the unit 10, India agriculture. Since ancient times, agriculture has remained a prime economic activity of most of the people in India. Even today also, main support for the Indian economy is agriculture. Agriculture is an important resource of India. प्राचीन समय से ही भारत के लोगों की जो मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति रही है स्टूडेंट्स, वो खेती है. ठीक है. इवन टुडे ऑल्सो, आज के ज़माने में भी मेन सपोर्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर. भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो खेती के ऊपर है. एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया. बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन भी है खेती हमारे लिए, क्योंकि 60% ऑफ द लेबर पावर इज एंगेज इन एग्रीकल्चर. मतलब 100 मजदूरों में से 60 मजदूर तो है, 60% मजदूर का मतलब होता है 60 मजदूर. ठीक है, वो खेती के साथ जुड़े हुए हैं. बिसाइड सप्लाइंग फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया, रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज ऑल्सो कम फ्रॉम एग्रीकल्चर. हमारे भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को खाना पहुंचाने के साथ साथ में खेती जो है वो कई सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है वो सप्लाई करने का भी काम करती है. एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज अबाउट 22% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट. खेती जो है वो भारत के कुल उत्पाद के 22% जो है वो हिस्सा ऑक्यूपाई करती है. यानी कि अगर भारत में 100 वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, तो उसमें से 22 जो चीज़ें हैं वो चीज़ें खेती के ऊपर आधारित है. ठीक है. Crops and other farm products holds about 18% contribution in export, which earns huge foreign exchange. खेती के ऊपर आधारित जो प्रोडक्ट है वो नेशनल एक्सपोर्ट के अंदर 18% जो है उसका हिस्सा ऑक्यूपाई करके बैठी है. ठीक है. द इंडियन इकोनॉमी इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. भारत की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो खेती के ऊपर आधारित है. थस इंडिया इज़ एन एग्रीगेरियन कंट्री. इसलिए भारत को खेती प्रधान देश माना जाता है. इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया 2 or more crops annually can be taken due to the factors like fertile plains, favorable climate for round the year cultivation, irrigation, skilled and hard working farmers, etc. As we know students, then in most of the parts of India we are enriched with the amount of natural resources in terms of rivers, because major rivers are flowing from the northern plain of the India. So at that place the people can take 2 or more than 2 crops annually, and at that place many fertile plains, the Ganga plain, the Ganga delta region, Brahmaputra delta region are available for the enormous production of the crops. Climate is also play a huge role in the cultivation of the crops. So favorable climate is also available at that place. As we know that if the rivers are supplying satisfied amount of water, then the irrigation facilities are also good at that place. So that is why in most of the areas of India the agriculture practice is very 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 important. But progress of this field is not efficient for India. Means agriculture field is today is very very backward, because of the Indian farmers are uneducated. They are suffering from the more population, larger families, inadequate facilities of irrigation, smaller farms, no interest in experimentation, less usage of chemical fertilizers, modern machinery,
scientific approach for cultivation, educated mass opting away from agriculture, the so-called lower status for agriculture in the society, etc. यानी कि भारत में खेती के विकास ना होने के कई सारे कारण हैं। उस कारणों में से सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारे भारत के अंदर जो परिवार के अंदर सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर सदस्य संयुक्त, अगर आप परिवार में रह रहे हो तो 8 से 10 सदस्य होते हैं। अभी 8 से 10 सदस्यों का जीवन निर्वाह करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कोई भी किसान के लिए। तो उनका मेजर इनकम सोर्स जो है वो जो खेती के ऊपर आधार होता है, और खेती में से होने वाली इनकम को वो जीवन निर्वाह के अंदर खर्च कर देते हैं। कई किसानों के पास ज़मीन इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसके अंदर वो फसल उगा के ज़्यादातर अमाउंट में क्रॉप कल्टीवेशन कर सके। एंड मेजर ऑफ द फार्मर्स आर अनएजुकेटेड एंड दे आर अनअवेयर अबाउट द एक्सपेरिमेंटेशन इनसाइड द एग्रीकल्चर, द मॉडर्न हाइब्रिड सीड्स एंड less uses of chemical fertilizers are also responsible for the poor condition of the Indian farmers nowadays. Okay, so this is the condition of right now in India of the farmers. So let us try to understand how it is proceed. तो पहला पैराग्राफ जो है स्टूडेंट्स, उसमें से आपको एक चीज़ तो खास जानने में मिलेगी कि भारत के अंदर किसानों के हालात क्या है, कृषि का महत्व क्या है, यानी कि भारत के अंदर जो कृषि है उसका स्थान कहाँ पे है। आज हम जानते हैं कि किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है। किसानों की वजह से ही आज भारत के अंदर जो है वो हम एक्सपोर्ट कंट्री बन चुके हैं। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास 3 टाइम के खाने के लाले थे, यानी कि भारत के हर लोगों को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो 3 वक्त का खाना चाहिए, वो भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाता था। बट आफ्टर दी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन नाउ वी आर अ एक्सपोर्ट कंट्री। मतलब अब हमारा खाना तो है, यानी कि भारत के हर एक नागरिक को अच्छी तरीके से खाना तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ में हम इन सभी चीज़ों की निकास भी करते हैं, यानी कि दूसरे देशों को भी भेजते हैं। तो ये एक अच्छी बात हुई और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ साथ में कई ऐसे विस्तार है, भारत के कई ऐसे राज्य है कि जहाँ पे जो किसान रहते हैं उनकी हालत बहुत ही बुरी होती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज and about experimentation. Okay, so I hope that you understand a paragraph very well. Now let us understand the second topic of this chapter, types of farming. खेती के प्रकार कितने होते हैं। The socio-economic condition of the people of India, administrative policy and the entire Indian economy are associated with agriculture. Farming types are classified according to irrigation methods, farm outputs, economic returns, etc. जैसा हमें मालूम है कि भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था जो है वो खेती के ऊपर ही आधारित है और खेती के साथ ही जुड़ी हुई है। तो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर आधारित है। सबसे पहले तो इरिगेशन मेथड, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था कितनी है। फार्म आउटपुट्स, यानी कि खेती में से उत्पन्न होने वाले कितने ऐसे आउटपुट हैं। और इकोनॉमिक रिटर्न्स, यानी कि उसमें से आर्थिक उत्पाद क्या मिलता है, उसके ऊपर से इसके टाइप्स किए गए हैं। सबसे पहला है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड, येट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर इज वेरी वीक इवन टुडे। आज़ादी के बाद जो है वो खेती के अंदर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए कि जिनकी वजह से विकास हुआ, और कई सारे खेती के विकास के प्रोजेक्ट्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए, लेकिन फिर भी भारत के किसानों की हालत जो है वो अभी भी खास्ता है। कॉस्टली सीड्स, फर्टिलाइजर एंड यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट अफोर्डेबल इन स्मॉल फार्म होल्डिंग्स। अभी जिस बेचारे किसानों के पास ज़मीन ही कम है, वो किसान जो है इतने ज़्यादा बियारण का, यानी कि फर्टिलाइज़र का, इतने ज़्यादा अमाउंट में सीड्स के पैसे नहीं खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जीवन निर्वाह करने के लिए ही बहुत पैसा होता है। इतने सारे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उसके पास पैसा नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ दिस द फार्म प्रोडक्ट्स इज जस्ट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली एंड कंज्यूम्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली। यानी कि खेत उत्पाद जो मिलता है, यानी कि खेती में से जो भी
अनाज का उत्पादन होता है वो अनाज जो है वो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और अपने परिवार को निभाने के लिए ही वो सभी इस्तेमाल करते हैं। और जो कुछ बच के बेचते हैं, मतलब परिवार को जो है न्यूट्रिशन फूड मिल जाए, उसके बाद वो बाज़ारों में जो फूड बेचते हैं तो उसमें से जो इनकम होती है उसे वो अपना घर चलाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो इवन टुडे इंडियन एग्रीकल्चर इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एक्टिविटी फॉर लाइफ मेंटेनेंस ओनली। इसीलिए आज भी जो छोटे किसान हैं उनकी हालत ऐसी है कि वो अपने सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं, ज़्यादातर इनकम का रिसोर्स नहीं गिना जाता भारत में। सेकेंड है ड्राई फार्मिंग, वेयर द रेनफॉल इज inadequate, irrigation facilities are less there, farming is dependent only on rain. Only one crop is taken through the humidity accumulated within the land. This is known as dry farming. जहाँ पे बारिश की संभावनाएं है वो कम होती है, पानी की जो व्यवस्थाएं है वो कम होती है जिस विस्तार के अंदर, वहाँ पे जो खेती है वो मुख्य तौर पे बारिश के ऊपर ही आधारित होती है। क्योंकि बारिश जब जाए तो बारिश की वजह से जो भी ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेट हुई है ज़मीन के अंदर, उस एक्यूमुलेशन से ही हमें क्रॉप को कल्टीवेट करना है। इस तरीके की खेती को ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। क्रॉप्स लाइक ज्वार, मिलेट एंड पल्सेस विच रिक्वायर लेस वाटर आर ग्रोन हियर। तो अभी ज़मीन के अंदर की जो ह्यूमिडिटी है उसके ऊपर से ही हमें क्रॉप को कल्टीवेट करना है, यानी कि फसल को उगाना है। तो ऐसी फसल को उगाना पड़ेगा कि जिसको पानी की ज़रूरत कम हो, क्योंकि बारिश तो कम है ही लेकिन साथ में सिंचाई की जो व्यवस्थाएं है, द इरिगेशन फैसिलिटी रिक्वायर आर ऑल्सो लेस। सो द क्रॉप्स लाइक ज्वार, मिलेट यानी कि बाजरा, और पल्सेस यानी कि कठोर, इसका उत्पादन ही वहाँ पे होता है। इन गुजरात wheat and gram are grown in the humid soils after the monsoon is over. गुजरात के अंदर एक भाल प्रदेश है, सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद के बीच में। वहाँ पे ज़मीन के अंदर जो ये ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेट होती है आफ्टर द मानसून, सो उसका उपयोग करके वहाँ पे गेहूँ और चना, इनके क्रॉप्स उगाए जाते हैं। थर्ड इज़ वेट फार्मिंग। तो आप सोच सकते हो कि ड्राई फार्मिंग में सिंचाई की व्यवस्थाएं कम थी, बारिश कम होती थी जिन विस्तारों में, वहाँ पे जो खेती की जाती थी उसे ड्राई फार्मिंग कहा जाता था। तो वेट फार्मिंग के अंदर क्या होगी? एग्जैक्टली ऑपोजिट। यस, यू गॉट इट राइट। जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था ज़्यादा हो और जहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती हो, वहाँ पे जो खेती की जाती है उसको वेट फार्मिंग कहा जाता है। इफ़ देर इज़ अ नो रेनफॉल और इफ़ इट इज़ इनसफिशियंट, मोर देन वन क्रॉप इज़ टेकन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा कि अगर जिस विस्तारों के अंदर सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं है, आजू बाजू में से अगर अच्छी नदियाँ बहती है, पूरे 12 महीने उसके अंदर नदियों के अंदर पानी का प्रवाह बहता रहता हो, तो वहाँ पे बारिश हो या ना हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंचाई के लिए जो भी पानी चाहिए वो तो नदियों के बहाव में से वो लोग उपयोग में ले लेते हैं। सो दैट इज़ वाई मोर देन वन क्रॉप इज़ टेकन इन द एंटायर ईयर थ्रू देयर इज़ अ नो रेनफॉल इज़ अवेलेबल, वेर इन पेडी, sugarcane, cotton, wheat and vegetables are grown. तो यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ऐसे क्रॉप्स भी उगाए जा सकते हैं कि जिसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, जैसे कि चावल है, शुगर कैन है, कॉटन, गेहूँ और सब्ज़ी, कि जिनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ऐसे क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। उसके बाद है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसे जूम एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। तो जूम एग्रीकल्चर क्यों कहा जाता है इन सभी इस टाइप के फार्मिंग को? तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि शिफ्टिंग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। इस खेती में बेसिकली होता क्या है कि जो किसान होते हैं उसका पूरा एक कबीला होता है, मीन्स वन ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर देयर, दे आर शिफ्टिंग one place to another place according to their need. What they are actually doing, they choose a particular area where the forest are there. यानी कि जहाँ पे जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे वो लोग जाते हैं, जंगलों को काट के ज़मीन को साफ़ करते हैं। ज़मीन को साफ़ करने के बाद जिस विस्तार में जंगल होता है वहाँ पे वो लोग फसल को उगाते हैं और उस फसल में से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। 2-3 साल तक वो ज़मीन जो है वो फर्टाइल है,
फर्टाइल रहती है, लेकिन एक साथ 2-3 साल उसमें से क्रॉप्स लेने के बाद उस ज़मीन में से क्रॉप्स उगना जो है वो बंद होता है, या तो उसकी फर्टालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और उसकी वजह से फर्टालिटी रिड्यूस होने की वजह से वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगाए जा सकते. सो देन आफ्टर पीपल विल शिफ्ट टू अनदर प्लेस, यानी कि वो जो खेतों का किसानों का ग्रुप था वो अभी दूसरी जगह पे चला जाता है और वहाँ पे जाके फार्मिंग करता है. ओके, सो दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एज ज़ूम कल्टीवेशन. Majorly in this type of farming, cereals and vegetables are grown. Okay, production is comparatively less in this type of farming. Then after, fifth is plantation agriculture. This is a special type of agriculture. Here rubber, tea, coffee, cocoa, coconut, apple, mango, oranges, grapes, amla, lemon, kharek, etc. are reared with great care. जो भी फ्रूट्स है और ऐसे स्पेशल टाइप के क्रॉप्स है जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबर है, इनको बड़ी ही केयर से, यानी कि बड़े बड़े जतन से इसका क्रॉप जो है वो उगाया जाता है. ओके, सो इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्किल, टेक्निकल नॉलेज, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, प्रोटेक्शन ऑन ऑल साइड्स, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. सो ये ज़रूरी होता है कि जहाँ पर क्रॉप्स को ज़्यादातर केयर की ज़रूरत हो, वहाँ पे जो किसान है वो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसके पास टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी होनी चाहिए कि इन क्रॉप्स को कैसे कल्टीवेट किया जाए. अगर एक एग्जांपल आपको दूँ कि हमारे गिर विस्तार के अंदर जो आम के फल उगाए जाते हैं, मैंगोस, तो उन फलों को उगाने के लिए बड़ी ही केयर से उसके बाग जो है उसको संभालना पड़ता है. क्रॉप्स को उगाने के टाइम, उनको तोड़ने के टाइम बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है, और उसके लिए स्पेशलाइज्ड मशीन्स, फर्टिलाइज़र्स, द नॉलेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन ये भी होना चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ नीड आर देयर फॉर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. जहाँ पे फल और ये सारी स्पेशल टाइप के क्रॉप्स उगाए जाए, ऐसी फार्मिंग को प्लांटेशन फार्मिंग कहा जाता है. लास्ट वन इज इंटेंसिव फार्मिंग. Intensive farming is the mechanized way of farming through utilization of increased irrigation, use of chemical fertilizers. Okay? Intensive farming है, इसे सघन खेती कहा जाता है. इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं ज़्यादा है और जहाँ पे लोग खेती को मुख्य आर्थिक व्यवसाय के तौर पे गिनते हैं, क्योंकि वहाँ पे खास करके इस प्रकार की खेती जो है वो पंजाब और हरियाणा के अंदर की जाती है कि जहाँ पे फार्मिंग के अंदर मैकेनाइज्ड वे का इस्तेमाल होता है, यानी कि यंत्रों का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है. वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हो या तो हार्वेस्टिंग के अंदर हो, ज़्यादातर मशीनों का इस्तेमाल होता है. एंड दे आर यूजिंग मोर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप. अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इज ऑल्सो यूज्ड एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड फॉर द इंटेंसिव फार्मिंग. Cash crops grow more in this type of farming. The per hectare production has increased very much here, and the area shown under these crops has increased. Per hectare जो यहाँ पे उत्पाद मिलता है उसकी तादाद भी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो खेत उत्पाद है वो हर साल बढ़ते रहता है, क्योंकि हर साल वो लोग नए नए प्रयोग जो है वो करते रहते हैं. As more importance is given to economic returns in this type of farming, it is also known as commercial farming. यानी कि इस खेती के अंदर ज़्यादातर महत्व जो है वो इकोनॉमिक रिटर्न, यानी कि जो हमें पैसे उसमें से मिलते हैं उसके ऊपर दिया जाता है, फोकस उसके ऊपर होता है, इसलिए इसे व्यापारी खेती भी कहा जाता है. सो दैट्स इट स्टूडेंट, हियर वी आर एंडिंग अवर सेशन. आई होप दैट यू एंजॉय एंड लर्न अ लॉट. वी विल study the another topic in a next session. Till that time, thank you.